ویلکم بیک. بہت اہم معلومات اس پروگرام کے شروع کے حصے میں ہم نے آپ سے ذکر کیا تھا. وزیر اعظم جناب نواز شریف کا دورہ نیو یارک، اس حوالے سے ابھی وہ لنڈن میں ہے، اور اس حوالے سے بین الاقوامی میڈیا بی بی سی وغیرہ میں جو خبریں آئیں ان کے دورے کے حوالے سے، اخراجات کے حوالے سے، اور اس میں جو لوگ شامل ہیں، جس میں کبھی کہا گیا کہ 74 لوگ شامل ہیں، کسی میڈیا رپورٹ پہ کہا گیا کہ وہ 29 لوگ شامل ہیں. اب وزیر اعظم ہاؤس کی جانب سے ایک ہمیں فون آیا ہے جس میں خاص طور پہ کہا گیا ہے، پہلی امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ وزیر اعظم کسی چارٹرڈ فلائٹ سے نہیں گئے ہیں. انہوں نے پی آئی اے کی کوئی فلائٹ حاصل نہیں کی ہے اپنے اس دورے کے لیے. وزیر اعظم جو وزیر اعظم کا جہاز ہوتا ہے جس میں 12 آدمی بیٹھ سکتے ہیں، اس میں وزیر اعظم لنڈن گئے ہیں، وہاں سے وہ نیو یارک جائیں گے، اور وزیر اعظم کے ساتھ اس جہاز میں کل ملا کے 11 لوگ صرف شامل ہیں جو ان کے ضروری انتہائی قریبی عملے کے لوگ ہیں، وہی اس میں شامل ہیں. اس کے علاوہ دوسرے لوگ جو کہ نیو یارک میں انہیں جوائن کریں گے وہ پی آئی اے کی کمرشل فلائٹ سے نیو یارک گئے ہیں. تو وزیر اعظم کسی بھی چارٹرڈ طیارے سے تشریف نہیں لے گئے ہیں. ان کے ساتھ اس دوران نہ 29 لوگ ہیں، نہ 70 لوگ ہیں، صرف 11 لوگ ہیں جو ضروری عملے کے لوگ ہیں. ان کی فہرست بھی انہوں نے ہمیں بھیجی ہے. یقینی طور پہ بالکل صحیح بات ہے کہ یہ ایک ایسا دورہ ہے جس میں صرف 11 لوگ وزیر اعظم کے ساتھ ہیں. لنڈن یہ لوگ رکے ہیں اور پھر یہ نیو یارک چلے جائیں گے. کوئی چارٹرڈ طیارہ نہیں ہے، پی آئی اے کے کوئی طیارے کو حاصل نہیں کیا گیا ہے. اس لیے اب اس سلسلے میں جو میڈیا کی خبریں ہیں اس پہ یقین کرنے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ یہ مستند ذریعے سے یہ بات سامنے آئی ہے اور دعوے سے کہا گیا ہے کہ صرف وزیر اعظم جو وزیر اعظم کا طیارہ ہوتا ہے، ذاتی طیارہ، اس کو لے کے لنڈن گئے ہیں، اور وہی طیارہ پھر آگے وزیر اعظم کو اور 11 لوگوں کو لے کے نیو یارک جائے گا. اس وقت کی ہماری دوسری اہم خبر، اس کا تعلق نندی پور فیاسکو سے ہے. نندی پور اسکینڈل یہ ایک وقت پاکستان کی موجودہ حکومت کا سب سے بڑا معاملہ ہے، سب سے بڑی ہزیمت ہے، سب سے بڑی اس میں حکومت کو اس وقت پریشانی کا سامنا ہے. تقریباً حکومتی اعداد و شمار کے مطابق 60 ارب روپے اس میں خرچ ہو چکے ہیں. پروجیکٹ بند پڑا ہوا ہے اور اگر چل بھی جائے گا تو اس میں اتنی مہنگی یہ بجلی پیدا کرے گا کہ ہمیں تقریباً 3 ارب روپے اس میں لگانے ہوں گے ماہانہ. سالانہ 36 ارب روپے کے قریب اس کی ذمہ داری کون قبول کرے؟ اس سلسلے میں ایسا لگتا ہے کہ اب جنگ کھل کے سامنے آ گئی ہے. 2 کیمپس ہیں اس میں. ایک کیمپ ہے وزارت پانی و بجلی جو کہ دراصل ایک پیرنٹ منسٹری ہے اس قسم کے تمام پروجیکٹس کی، اور ایک ہے وزیر اعلیٰ جناب شہباز شریف کی اپنی ذاتی انسیت یا تعلق پاور پروجیکٹس کے حوالے سے، انرجی کے مسائل کے حوالے سے، اور خاص طور پہ نندی پور کے حوالے سے. یہ بات بالکل واضح ہے کہ نندی پور کے معاملات میں جناب شہباز شریف کا بڑا کلیدی کردار تھا. نہ صرف یہ کہ جب سے یہ پروجیکٹ ریوائیو ہو رہا تھا اور اس کے بعد سے جب یہ کام شروع ہوا، پھر اس کے بعد نندی پور پاور پروجیکٹ کے مینیجنگ ڈائریکٹر کی حیثیت سے پنجاب ہارٹی کلچر ایسوسی ایشن کے اتھارٹی کے جو مینیجنگ ڈائریکٹر تھے ان کی اس میں مینیجنگ ڈائریکٹر کی حیثیت سے اپوائنٹمنٹ، یہ سارے معاملات سامنے آئے. جس کے بعد واضح طور پہ اب یہ فیصلے کیا وقت آ گیا تھا کہ دیکھا جائے کہ ذمہ داری اس مینجمنٹ کی تھی جسے جناب شہباز شریف نے اپوائنٹ کیا تھا، یا وزارت پانی و بجلی کی جس کو شہباز شریف صاحب کی وزارت کے جو مینجمنٹ ہے انہوں نے اس کا ذمہ دار ٹھہرایا تھا. اس سلسلے میں بہت ہی ایک دوسرے کے درمیان ڈاکیومنٹس کا تبادلہ ہوا ہے وزارت پانی و بجلی اور اس پروجیکٹ کی مینجمنٹ کے درمیان، اور اب اس میں نئی تیزی آ گئی ہے. اور ایک تازہ ترین خط جو ہے وہ لکھا ہے 7 ستمبر کو نندی پور پاور پروجیکٹ کے ایم ڈی محمد محمود نے، اور یہ لکھا گیا ہے وزارت پانی و بجلی کے ایک سیکشن آفیسر نے ان کی کلاس لی تھی اور سلسلے 1 ستمبر کو خط لکھا تھا. اب اس کا جواب دیا گیا ہے. اس حوالے سے ہم نے گزشتہ روز نندی پور پاور پروجیکٹ کے محمد محمود کی وزارت پانی بجلی کے رواں سال 2 مارچ سے 28 جولائی کے دوران 6 خطوط کی تفصیلات آپ کو بتائی تھی. اب ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ اب سے 3 ہفتے قبل یعنی 1 ستمبر کو وزارت پانی و بجلی کی جانب سے بھیجے گئے خفیہ لیٹر اور اس کے جواب میں 7 ستمبر کو یعنی کہ اسی مہینے کے 7 ستمبر کو نندی پور انتظامیہ کے تفصیلی جواب کے دکھائیں گے آپ کو، جس میں آپ کو ایک تحریری جنگ نظر آئے گی ان 2 کیمپوں کے درمیان. وزارت پانی و بجلی نے قومی خزانے پر اربوں روپے کا بوجھ بننے والے منصوبے کی ناکامی کا نندی پور کی انتظامیہ سے 3 دن میں جواب طلب کیا تھا. وزارت پانی و بجلی نے کہا تھا کہ 3 دن میں آپ بتائیں کہ آپ کیوں ناکام ہو گئے. جواب طلبی یا وضاحت کی بات کریں تو وزیر پنجاب شہباز شریف نے 2 ہفتے پہلے 8 ستمبر کو ایک وضاحتی پریس کانفرنس میں کہا تھا کہ نندی پور کے مسئلے پر جواب اصل میں وزیر پانی و بجلی خواجہ آصف کل آپ کے سامنے وضاحت پیش کریں گے، لیکن وہ کل اب تک نہیں آئی اور اس کو گزرے ہوئے بھی تقریباً 12 دن ہو چکے ہیں. کل خواجہ آصف صاحب نندی پور کے اوپر ایک پریس کانفرنس کر رہے ہیں. انہوں نے آج کرنی تھی مگر میں چونکہ
मेरा ये सब्जेक्ट था इसका भावलपुर सोलर प्रोजेक्ट का, जो कल अपना मीडिया में उसके बारे में गुफ्तगू हुई, तो उन्होंने फिर ख्वाजा साहब ने कहा कि मैं कल करूँगा। कल ख्वाजा साहब इसके बारे में, नंदीपुर के बारे में भरपूर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। वो 81 अरब की भी अमाउंट वो भी नहीं है। वो बहरहाल मैं इसके बारे में बात सुन लें, कल ख्वाजा साहब इसकी प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे भरपूर। उसके बाद कोई बात नंदीपुर के हवाले से तशना रही तशना, तो मेरा आपसे वादा है कि फिर मैं आपसे बैठूंगा इंशाअल्लाह। ख्वाजा आसिफ ने प्रोजेक्ट की नाकामी पर बाकायदा तौर पर तो अवाम को तो एतबार में नहीं लिया, अलबत्ता उनकी वजारत पानी और बिजली ने नंदीपुर इंतजामिया को मनसूबे की मौजूदा हालत का बराह रास्त कसूरवार ठहरा चुकी है। नंदीपुर इंतजामिया के MD मोहम्मद महमूद का कहना है कि प्रोजेक्ट के तमाम मामलात निहायत जिम्मेदारी से उन्होंने निभाए हैं, उनके बकौल कोई कसर नहीं छोड़ी। नंदीपुर प्रोजेक्ट को बचाने के लिए हर तरह की भागदौड़ कर ली, बगैर सबूत इंतजामिया पर इल्ज़ाम धरना नाइंसाफ़ी होगी। वजारत पानी और बिजली का कहना है कि नंदीपुर इंतजामिया ने मनसूबे के कॉन्ट्रैक्टर चीनी कंपनी डोंगफेंग के खिलाफ ज़ाब्ता रियायतें दी हैं। ये अब वजारत पानी और बिजली कह रही है। जवाब में मोहम्मद महमूद कहते हैं कि महज बदगुमानी है, इंतहाई गलत तासुर है कि नंदीपुर प्रोजेक्ट के कॉन्ट्रैक्टर को किसी किस्म की रियायत दी गई है, मगर वजारत पानी बिजली ने लिखा है कि प्रोजेक्ट के लिए गैर मामूली फर्नेस ऑयल ट्रीटमेंट प्लांट और इंतहाई घटिया क्वालिटी का फ्यूल इस्तेमाल किया गया, मगर नंदीपुर इंतजामिया ने कॉन्ट्रैक्टर पर कोई जुर्माना आयद नहीं किया। नंदीपुर के मैनेजिंग डायरेक्टर मोहम्मद महमूद का कहना है कि कॉन्ट्रैक्टर के साथ सख्त नज़्म ज़ब्त से काम लिया गया। ये ट्रीटमेंट प्लांट पर वजारत पानी बिजली ने मई 2015 में इंक्वायरी कराई, आज तक तहकीकात से आगाह नहीं किया, ये याद दिलाया है मोहम्मद महमूद ने वजारत पानी बिजली को। उन्होंने ये भी कहा है कि ट्रीटमेंट प्लांट की अपग्रेडेशन के लिए इजाफी स्किड्स लगाए जाएंगे, ये भी नहीं हुआ है। वजारत पानी और बिजली ने नंदीपुर इंतजामिया पर अब ये इल्ज़ाम लगाया है कि मुख्तलिफ दस्तावेज़ात में मुतादिद तब्दीलियाँ करके मामले को मुतनाज़िया बना दिया गया है। प्लांट ऑपरेटर की तकर्रुरी के लिए वजारत पानी और बिजली और नॉर्दर्न पावर जनरेशन कंपनी लिमिटेड के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को एतमाद में नहीं लिया गया। मोहम्मद महमूद कहते हैं कि 2 मार्च 2015 को वजारत पानी बिजली से दरख्वास्त की थी कि प्लांट ऑपरेटर के लिए बोली की तीसरी मियाद भी 19 मार्च को ख़त्म हो रही है। ईमेल्स, रिपोर्ट्स और ब्रीफिंग, प्रेजेंटेशन और मुख्तलिफ इजलास की कार्रवाइयों से तमाम शराकतदारों को बर वक्त आगाह रखा गया और एतराज़ करने वालों से अपना रिकॉर्ड दुरुस्त करने की दरख्वास्त की है। ये कहा है अब नंदीपुर इंतजामिया ने। मुख्तसर ये कि इस वक्त खतूत के ज़रिए एक दूसरे को बराह रास्त न सिर्फ इल्ज़ामात ठहराया जा रहा है, बल्कि इसका मलबा एक दूसरे पर गिराया जा रहा है। इस वक्त पल्ला अगर हम अपनी नज़र से देखें तो भारी नज़र आता है शहबाज शरीफ इंतज़ामिया का या नंदीपुर पावर प्रोजेक्ट की इंतज़ामिया का, क्योंकि उन्होंने 6 ख़त लिखे हैं पिछले 6 माह के दौरान वजारत पानी और बिजली को कि प्लांट ऑपरेटर की तैनाती की जाए, उसका सिलेक्शन किया जाए, लेकिन वजारत पानी और बिजली के कान पर जू रेंगती नज़र नहीं आई है। वज़ीर आज़म इस सिलसिले में तहकीकात कर रहे हैं, 3 तहकीकात का उन्होंने ऑर्डर किया है, लेकिन हमें नहीं पता कि इसके नताइज आने में। बहरहाल एक तो फरीक जिम्मेदार है, लेकिन क्या वज़ीर आज़म एक्शन ले सकेंगे जनाब शहबाज शरीफ के खिलाफ अगर वो जिम्मेदार ठहरे, या ख्वाजा आसिफ के साथ अगर वो जिम्मेदार छोड़े, क्योंकि एक अगर दायां बाजू है तो एक बायां बाजू है, लेकिन हुकूमत की साख नंदीपुर के साथ उसमें क्रैक्स आते जो हैं वो वाज़ेह तौर पर नज़र आते हैं। इस पर मज़ीद बात करेंगे और इसके लिए हमारे साथ इस्लामाबाद मौजूद है दुनिया न्यूज़ के सीनियर एनर्जी कॉरेस्पॉन्डेंट जनाब राजा उस्मान। बहुत बहुत शुक्रिया उस्मान साहब। आप बताइएगा कि इस वक्त अगर ये कहा जाए कि एक जंग किसी कैफियत है जो नंदीपुर इंतज़ामिया है जिसको जनाब शहबाज शरीफ की बैकिंग है और वजारत पानी बिजली जो कि जनाब ख्वाजा आसिफ चला रहे। अभी कल खबर आई थी कि जनाब ख्वाजा आसिफ अब आराम करने के लिए बाहर चले गए हैं, वो तवील छुट्टियों पर बाहर होंगे, कम से कम 2 हफ्ते के लिए वो बाहर चले गए। क्या इससे ये मामला जुड़ा है? ख्वाजा आसिफ साहब वाकई कोई प्रेशर फील कर रहे हैं? इस पूरे मामले में आपको कहाँ प्रेशर ज़्यादा नज़र आ रहा है? जी कामरान साहब बहुत बहुत शुक्रिया। सबसे पहली बात तो ये है कि जिस तरह शहबाज शरीफ साहब ने कहा कि कुछ तशनगी बाकी रह गई तो वो इसका जवाब देंगे ख्वाजा आसिफ साहब, लेकिन तशनगी है कि बढ़ती जा रही है और अभी तक इसका कोई वाज़ेह तौर पे जवाब नहीं दे रहे हैं। ख्वाजा आसिफ साहब का एक जो हालिया लेटेस्ट जो बयान सामने आया है वो ये है कि जो फ्यूल ऑयल ट्रीटमेंट प्लांट है उसमें उसकी जो कैपेसिटी है वो इंतहाई कम है, जिसकी वजह से इस प्लांट को चलाया नहीं जा रहा है। लेकिन हालांकि अगर देखा जाए तो जो उसकी नेम प्लेट जो लगी गई है फ्यूल ऑयल ट्रीटमेंट प्लांट की, जो जिसके ऊपर प्लेट लगाई गई है, उसमें ये वाज़ेह तौर पे है कि इसकी जो फ्यूल ऑयल कैपेसिटी है वो 124 क्यूबिक पर मीटर जो ऑयल फिल्टर करके आगे टरबाइन तक पहुंचाता है वो है। इसमें कोई बात वाली बात नहीं है, लेकिन जो मेन बात ये सामने आई है कि अगर इसकी कैपेसिटी कम भी है तो ये प्लांट बंद क्यों रखा गया है? क्योंकि CPPA
اور جو ECP ہے اور جو نیسپا کے انجینئرز ہیں انہوں نے اس کو بالکل اوکے قرار دیا ہے, اس پلانٹ کو 100% فٹ قرار دیا ہے جنریشن کے لیے, لیکن اس کے باوجود پلانٹ کی بندش کی سمجھ ابھی تک نہیں آتی ہے. O&M جو کانٹریکٹ ہے اس کا وہ ابھی تک کیوں نہیں کیا جا رہا ہے, گورنمنٹ کیا سوچ رہی ہے, اور جو MD ہیں نندی پور کے وہ بار بار یہ وضاحت کر چکے ہیں, لکھ چکے ہیں وزارت پانی بجلی کو کہ آپ اس کے کانٹریکٹ کا بندوبست کریں. یہ آخر اس کی کیا وجوہات ہیں؟ گورنمنٹ اپنے پیسے لگا کے, قوم کے پیسے لگا کے, اربوں روپے لگا کے کیا دیکھ رہی ہے کہ اس پلانٹ کو کیوں؟ یہ ہمیں نہیں پتا عثمان صاحب کہ بند کیوں ہے, کیونکہ اصل پرابلم تو یہ ہوا کہ یہ بند ہو گیا. یہ بند کس وجوہات کی بنا پر ہے؟ جو اس وقت محمد محمود جو پروجیکٹ مینیجنگ ڈائریکٹر ہے ان کا کیا کہنا ہے, اور وزارت کیا کہتی ہے کہ آفٹر آل پہلا تو مسئلہ یہ ہے کہ یہ اچانک بند ہو گیا ہے, تو اس کی وجہ کیا ہے؟ جی کامران صاحب, سب سے پہلے تو یہ ہوتا ہے کہ جب بھی کوئی نیا پلانٹ شروع کیا جاتا ہے اس کو 7 دن 1 ہفتے کے لیے اس کو ٹیسٹ کیا جاتا ہے, فل کیپیسٹی کے اوپر اس کو رن کیا جاتا ہے. پھر اس کے بعد نیسپا کے انجینئر جو اس کی انتظامیہ ہوتی ہے وہ, اور CPPA کے جو انجینئر ہیں وہ اس کو سرٹیفائی کرتے ہیں, وہ اس کو ایک سرٹیفکیشن دیتے ہیں کہ یہ پلانٹ اب فل کیپیسٹی کے اوپر چلایا جا سکتا ہے. نندی پور پاور پلانٹ جو ہے وہ اس کی جو میعاد جو پوری ان کی کمپلیشن ڈیٹ تھی وہ 27 جولائی 2015 تھی, اور 27 جولائی کو اس کو فل کیپیسٹی کے اوپر 1 ہفتہ نہیں بلکہ 10 دن چلایا گیا, اور 10 دنوں میں اس پلانٹ نے جو گرڈ سٹیشن تک بجلی پہنچائی وہ 431 میگا واٹ ہے. حالانکہ یہ 425 میگا واٹ عامل کا یہ پروجیکٹ ہے, اور 431 میگا واٹ اس پلانٹ سے بجلی پیدا ہوئی. اس کے باوجود ابھی تک مین جو وجہ نہ چلانے کی جو وجوہات جو سامنے آ رہی ہیں وہ یہ ہیں کہ جو O&M کانٹریکٹ ہے, اس سے پہلے جتنے بھی جنکوز ہیں جو کمپنیاں پاکستان میں بجلی پیدا کرتی ہیں گورنمنٹ کی, ان کو وابڈا کے انجینئر چلا رہے تھے, لوکل لوگ یہاں سے چلا رہے تھے. لیکن یہ پہلا نندی پور پاور پروجیکٹ ہے جس میں جدید مشینری لگائی گئی ہے, اور اس پہ یہ پلان بنایا گیا تھا کہ اس کو تھرڈ پارٹی انٹرنیشنل کمپنی اس کو چلائے گی اور وہ آگے رن کرے گی تاکہ اچھے طریقے سے اس کی مینٹیننس کی جا سکے. اس حوالے سے جو TBM کمپنی ہے, ملائیشیا کی جو TBM کمپنی ہے, اس کو کانٹریکٹ بھی دے دیا گیا تھا. لیکن جب سائن ہونے کا وقت آیا, جب معاہدہ ہونے کا وقت آیا, دستخط ہونے کا وقت آیا, تو اس وقت جنکو 3 ہے اس کے جو بورڈ نے انکار کر دیا, اور اس نے کہا جی کہ اس کی اپروول آپ لے لیں ایکنک سے, اور اس کا ہم جو ہے نا اس کی منظوری نہیں دے سکتے ہیں. جس کے اوپر MD نے بارہا سیکرٹری وزارت پانی بجلی کو یہ لکھا کہ آپ جو ہے اس کا نوٹس لیں کہ یہ آخر کیوں جو ہے اس کا کانٹریکٹ کیا نہیں جا رہا ہے, O&M کانٹریکٹ کیوں نہیں کروایا جا رہا ہے. جس کے اوپر ابھی تک معاملہ وہیں کا وہیں ہے, نہ سیکرٹری نے نوٹس لیا نہ گورنمنٹ نے نوٹس لیا. مختصر یہ کہ اتنے عرصے سے تو یہ معاملہ اس وقت 24 گھنٹے جب سے ہم نے کیا ہے, یہ میڈیا پر ہے, 24 گھنٹے اس پہ بات ہو رہی ہے, لیکن مسئلہ اپنی جگہ کھڑا ہے, جو کا تو کھڑا ہے, اس میں کوئی بہتری نہیں ہے. جی مسئلہ بالکل ابھی جوں کا دوں ہے, کوئی بہتری نہیں ہے. اگر وزیراعظم یا وزیر اعلیٰ پنجاب اس کو نوٹس لے کے O&M کانٹریکٹ کے لیے وزارت پانی بجلی, سیکرٹری پانی بجلی کو یہ ان کے اوپر یہ دباؤ ڈالتے یا ان کو یہ ہدایت کرتے کہ آپ اس کا O&M کانٹریکٹ فوری طور پہ کریں اور اس 425 میگا واٹ کے حامل کا جو یہ منصوبہ ہے اس کو فوری رن کریں, تو مجھے امید ہے کہ ابھی تک یہ پروجیکٹ بالکل ابھی تک حل تو نہیں ہوا ہے, اور مسئلہ جو کا تو کھڑا ہے, ایک بہت مسئلہ ہے, بہت بڑا معاملہ ہے. نندی پور پروجیکٹ ہے, حکومت کی پوری ساکھ اس پہ داؤ پہ لگی ہے. لیتے ہیں کمر سے بریک اور اس کے بعد ذکر کریں گے یہاں کا بڑا کیس جو کراچی میں ہونے والی دہشت گردی کے خلاف جنگ ہے, جس میں دہشت گردی اور فائنینشیل ایشوز کو ساتھ جوڑا گیا ہے. اس میں بہت بڑی گرفتاری ہوئی تھی ڈاکٹر عاصم حسین کی, پاکستان پیپلز پارٹی سے تعلق رکھنے والے ڈاکٹر عاصم حسین کراچی کے بہت اہم سماجی شخصیت بھی تھے. اب ان کی گرفتاری میں ایک نیا موضوع آیا ہے کہ ان کی شاید طبیعت خراب ہوئی ہے, ہارٹ ایشوز ہوئے ہیں, جس کے بعد انہیں امراض قلب کے قومی ادارے میں آج داخل کرایا گیا ہے. حکام یہ کہتے ہیں کہ بہت ہی سیریس کوئی معاملہ نہیں ہے, وہ چاہتے ہیں کہ ڈاکٹر عاصم کے ساتھ دوبارہ تحقیقات شروع, اور ہماری اطلاعات کے مطابق جیسی بہتری آئے گی ڈاکٹر عاصم گھر نہیں بلکہ شاید نیب کے پاس جائیں گے. اب نیب ان کے لیے تحقیقات کی تیاری کر رہی ہے. اس کے بارے میں آپ کو بتاتے ہیں ایک چھوٹے سے کمرشل بریک کے بعد. ویلکم بیک. ڈاکٹر عاصم حسین جنہیں چند ہفتے قبل کراچی میں گرفتار کیا گیا تھا اور انہیں دہشت گردی کے متعلقہ شکووں میں گرفتار کیا گیا تھا, اور گرفتار کرنے والے حکام کے قریبی ذرائع نے کہا تھا کہ ان پر الزام یہ ہے کہ دہشت گردوں نے ان کے ہسپتال میں پناہ حاصل کی, مبینہ طور پہ وہاں پہ اپنا علاج کرایا, اور اس دوران جو ان کو فیسلٹیز دی گئی, میڈیکل فیسلٹیز دی گئی, قانون کے مطابق اس کی اطلاع پولیس اور قانون نافذ کرنے والے اداروں نے ان کو نہیں دی گئی.
जिस तरह से डॉक्टर आसिम हुसैन और उनके ज़ेर इंतज़ाम ज़ियाउद्दीन अस्पताल मुबैना तौर पर दहशत गर्दों की मावनत में उस पर इल्ज़ाम है कि उसने ये अमल किया है। इसी दौरान डॉक्टर आसिम हुसैन से उनके दूसरे मामलात के हवाले से भी इत्तलात के मुताबिक सवालात जवाबात किए गए हैं, जवाब हासिल किए गए हैं और जिनका ताल्लुक़ उनकी वजारत के दौर से भी है। इंतहाई काबिल एतबार ज़राए कहते हैं कि डॉक्टर आसिम हुसैन से मालूमात उनकी पेशा वराना मसरूफियत के हवाले से भी हासिल की गई है, जिसका बराह रास्त ताल्लुक़ उनके वो रवाबित हैं, वो ताल्लुकात हैं जो उनके बचपन के दोस्त जनाब आसिफ अली जरदारी के साथ है। जनाब आसिम हुसैन जनाब आसिफ अली जरदारी से कैडेट कॉलेज ऑफ पिटारो के ज़माने से दोस्त हैं, इंतहाई करीबी दोस्त, दस्ते रास्त और इंतहाई काबिल एतमाद उनके फिजिशियन भी डॉक्टर आसिम हुसैन भी हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की साबिक गवर्नमेंट की हुकूमत में उन्हें सेनेटर का ओहदा भी दिया गया था, उन्हें सेनेट से इलेक्शन भी जितवाया गया था, लेकिन दोहरी शहरीत की बुनियाद पर उन्होंने सेनेटर के अहदे से इस्तीफ़ा दे दिया था। मगर वो पानी और बिजली की इंतहाई माफ़ कीजिएगा पेट्रोलियम और नेचुरल रिसोर्स की इंतहाई अहम वजारत के वज़ीर भी थे। जनाब डॉक्टर आसिम हुसैन की गिरफ़्तारी के बाद से ये इल्ज़ाम कि वो दरअसल मुबैना तौर पर वो और उनका अस्पताल दहशत गर्दों की मावनत करता रहा है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने उस पर शदीद एहतजाज किया है। जनाब आसिफ अली जरदारी ने खुद इस पर सख्त बयानात भी जारी किए हैं। आज भी जनाब डॉक्टर आसिम हुसैन की बीमारी की इत्तला पर जो कि आज सुबह मिली, जिसमें बताया गया कि डॉक्टर आसिम हुसैन के सीने में दर्द के बाद उन्हें अमराज क़ल्ब के कौमी अस्पताल में मुंतकिल कर दिया गया था, जहां डॉक्टर्स ने उनके एंजियोग्राफी की और इसके अलावा उनकी ECG ली गई। ECG उनकी नॉर्मल नहीं आई थी और उसके बाद फिर अब थी कि उनकी मज़ीद तहकीकात की जाए, मज़ीद तफ्तीश की जाए, इसके लिए शायद एक मेडिकल बोर्ड बनेगा। आज इस सिलसिले में डॉक्टर आसिम हुसैन की अहलिया ने सिंध हाई कोर्ट से रुजू किया और उनसे कहा कि जब तक उनके हस्बैंड की तबीयत मुकम्मल तौर पर दुरुस्त नहीं होती उन्हें हस्पताल से कहीं और मुंतकिल ना किया जाए। सिंध हाई कोर्ट ने उनकी इस्तदा मान ली और मगर ख़ास तौर पर कहा कि रेंजर्स के डॉक्टर्स इस बात का तयन करें कि डॉक्टर आसिम हुसैन की तबीयत दुरुस्त है या नहीं और उस वक्त तक उन्हें अस्पताल से कहीं और मुंतकिल ना किया जाए। ज़रा ये कहते हैं कि जनाब आसिम हुसैन इस बीमारी के बाद शिफायाब होंगे या जब भी उनकी शिफायाबी के बारे में इत्तला दी जाएगी तो ऐन इम्कान यही है कि अब उनके साथ तहकीकात का दूसरा अमल शुरू हो, जिसका ताल्लुक मुबैना तौर पर करप्शन के इल्ज़ामात से है और वो इल्ज़ामात जिसका ताल्लुक उनकी वजारत पानी और बिजली से है, पेट्रोलियम और नेचुरल रिसोर्स से है। डॉक्टर आसिम हुसैन ऐन इम्कान यह है कि यहाँ से अगर निकलेंगे तो वो फिर नैब के पास पहुँचेंगे, जहाँ पर उनके हवाले से तहकीकात मुख्तलिफ मराहिल में दाखिल हो चुकी है, ये ज़राए कहते हैं। इस सिलसिले में मज़ीद मालूमात हासिल करते हैं और इसके लिए हमें ज्वाइन किया है दुनिया न्यूज़ के बाखबर ब्यूरो चीफ कराची में जनाब रेहान हाशमी ने। बहुत बहुत शुक्रिया रेहान हाशमी साहब। ये बताइएगा कि क्या डॉक्टर आसिम से जो मुबैना तौर पर दहशत गर्दी के इल्ज़ामात थे वो तहकीकात पूरी हो गई है या ये कि वो अभी जारी है और अब उनका स्टेटस क्या है, आगे चल के क्या होने वाला है? देखिए कामरान साहब, कानून के मुताबिक जो कानून है तहफ़्फ़ुज़ पाकिस्तान ऑर्डिनेंस, उसमें 90 दिन का रिमांड ले रखा है रेंजर्स हुकाम ने। उनसे दहशतगर्दी से मुतालिक तहकीकात जारी हैं, लेकिन हमारे ज़राए इस बात की तस्दीक कर रहे हैं कि आइंदा चंद दिनों में एक जॉइंट इन्वेस्टिगेशन टीम बनाई जा रही है। इसमें नैब के आला अफसरान को शामिल किया जा रहा है। इसमें नैब के 4 आला अफसरान को शामिल किया जाएगा जो रेंजर्स के साथ मिलकर तहकीकात में शामिल होगी और ये पहली दफ़ा होगा कि नैब बाकायदा डॉक्टर आसिम हुसैन के खिलाफ जो तहकीकात हैं, इसमें सबसे अहम तहकीकात हैं, उन्होंने ज़मीन हासिल की, कराची में सस्ती ज़मीन हासिल की जो अरबों रुपए की ज़मीनें थी। कराची के मुख्तलिफ इलाकों, इसमें पौश इलाके क्लिफ्टन और नॉर्थ नाजाबाद है। उसके अलावा जो LNG की मामला की ऑलरेडी तहकीकात जारी है, जैसे अपने प्रोग्राम में आपने पहले भी बताया था आज से चंद रोज कबल कि LNG की तहकीकात जारी है, उसमें भी तहकीकात करेंगी। और ये जो टीम शामिल होगी, जॉइंट इन्वेस्टिगेशन टीम होगी, इसमें नैब और हमारे जरा कहते हैं रेंजर्स हुकाम भी शामिल होंगे। नैब के एक डायरेक्टर होंगे, एडिशनल डायरेक्टर होंगे और 2 असिस्टेंट डायरेक्टर होंगे। 4 रुकनी ये आला सतह की तहकीकाती टीम होगी जो बाकायदा अब आसिम हुसैन के खिलाफ नैब की ऑर्डिनेंस के तहत जो 99 के तहत तहकीकात शुरू करेंगी। और ऐसा लगता है कि जब रेंजर्स अपनी तहकीकात मुकम्मल कर लेगी तो नैब उनके साथ मिलकर अपनी तहकीकाती रिपोर्ट भी पेश करेगी अदालत में। लेकिन ऐसा लगता है कि आइंदा चंद दिनों में पीर तक जो ईद के बाद छुट्टियां होंगी उसके बाद बाकायदा नोटिफिकेशन जारी होने का कभी अच्छा, ये बताएं कि डॉक्टर आसिम की सेहत के हवाले से
अभी क्या पोजीशन है? एक तो उनकी अपनी सेहत की पोजीशन क्या है, NICVD क्या कहती है जहां पर वो मौजूद हैं, और आज अदालती अहकामात इस सिलसिले में क्या हैं? देखिए, जो NICVD जैसे आपने खुद बताया कि उनका जो एंजियोग्राफी ठीक थी, लेकिन उनके गुर्दे में क्रिएटिनिन जो सबसे इंपॉर्टेंट होते हैं किसी भी इंसान में, अगर उसे क्रिएटिनिन ज़्यादा आए, अगर जिसे पस सेल कहते हैं, गुर्दे की जानिब से वो पस सेल निकलते हैं, उसकी रिपोर्ट नेगेटिव आई है और पॉजिटिव आई है, माफ़ कीजिएगा, जिसके नतीजे में उनके गुर्दे के टेस्ट सुबह किए जाएंगे। उनके जो ECG था वो बेहतर है और अभी वो उन्हें वार्ड में रखा गया है, सख्त पैरे में रखा गया है। इसके अलावा सुबह उनके टेस्ट लिए जाएंगे। और जबकि सिंध हाई कोर्ट ने अहकाम दिए हैं, सुबह रेंजर्स हुकाम को सुबह 11 बजे तलब किया है, जो अपनी एक मेडिकल रिपोर्ट भी पेश करेंगे सिंध हाई कोर्ट में। इसमें बताया जाएगा कि डॉक्टर आसिम की हालत अब कैसी है। कल रात तकरीबन 1 से 2 बजे के दरमियान उन्हें लाया गया था। सुबह मीडिया को इत्तला मिली, इसके नतीजे में वज़ीर आला सिंध भी गए, सीनियर वज़ीर तालीम है, वज़ीर इत्तलात हैं निसार खोड़ू वहाँ गए थे उनको देखने के लिए। कितनी इंपॉर्टेंस है आप देखेंगे। वज़ीर आला जैसी पता चला, मीडिया में खबरें आई, तो वज़ीर आला सिंध बकाद खुद पहुंचे और NICVD में उनकी अहदत की। उसके बाद वो चले गए और हमारे जराए कहते हैं कि सुबह डॉक्टर आसिम हुसैन के डिस्चार्ज होने या उन्हें रखने का फैसला कल सुबह रेंजर्स के डॉक्टर मुआयना करेंगे, उसके बाद किया जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया। रेहान हाशमी हमारे साथ हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के शरीक चेयरपर्सन जनाब आसिफ अली जरदारी ने आज दुबई से एक बयान में कहा है कि रेंजर्स की हिरासत में डॉक्टर आसिम को दिल का दौरा बहुत से अहम सवालात को जन्म लेता है। जनाब आसिफ अली जरदारी ने कहा कि डॉक्टर आसिम पर दहशतगर्दों की मावनत का इल्ज़ाम लगाना इख्तियारात का नाजायज़ इस्तेमाल है। उन्होंने कहा कि सिंध हुकूमत को चाहिए कि डॉक्टर आसिम को बेहतरीन तिब्बी सहूलतें फराहम करे। ये जनाब आसिफ अली जरदारी का आज का बयान था। एक बार फिर उन्होंने जनाब डॉक्टर आसिम हुसैन की गिरफ्तारी की शदीद मजम्मत की है। इसी दौरान एक और मामला है करप्शन से जुड़ा हुआ, और अब उसके सवालात पूछे जा रहे हैं उन लोगों से, उन एजेंसी से जो कि करप्शन के सबसे बड़े किरदार के, सिंध हुकूमत में करप्शन के और कराची में होने वाली करप्शन के सबसे बड़े किरदार यानी मंजूर कादर काका से जो पूछगछ करते रहे, चाहे वो नैब के हुक्काम हो, चाहे वो दूसरी कानून नाफिज करने वाले इदारों के हुक्काम हैं, कि करप्शन का मंबा कराची में और सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी का ये डायरेक्टर जनरल, जिसने एक अंदाजे के मुताबिक तकरीबन 20 अरब रुपए की करप्शन की कराची के तामीराती मनसूबों के हवाले से, वो बासानी मुल्क से कैसे चला गया। अगर करप्शन के खिलाफ तहकीकात हो रही है और करप्शन के खिलाफ इतनी बड़ी कैंपेन चल रही है, तो मंजूर कादिर किस तरह से मुमकिन हुआ कि ना ही उसको एयरपोर्ट पर रोका गया, ना ही उसको पाबंद किया गया, ना ही उसको हिरासत में लिया गया, ना ही उसको नज़रबंद किया गया, और वो बासानी कनाडा रवाना हो गया, जहाँ का वो शहरी है, जहाँ पर उसके ख़ानदान ने पहले ही सुकूनत इख्तियार कर ली है। मंजूर कादिर काका बैरून मुल्क कैसे गया है, इस बारे में अब कोई दो राय नहीं है। बासानी जिना इंटरनेशनल एयरपोर्ट कराची से मंजूर काका गया है, क्योंकि उसको रोकने के लिए किसी किस्म के ना अहकामात थे, ना इंस्ट्रक्शन थे एयरपोर्ट पे दिए गए हों, और उसके बाद से मंजूर काका की यहाँ से रवानगी, ये एक कोई बड़ा राज नहीं है। राज ये है कि आखिर क्यों इस शख्स को रोका नहीं गया, क्यों, क्या कहीं ऐसे तो बात नहीं है कि मंजूर कादिर काका जो कि 20 अरबों रुपए की करप्शन के में मुलविस था, उसके वही 20 अरब रुपए अब काम आए हो, जिसकी वजह से उस पर गो के करप्शन के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की जा रही है। उन लोगों के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है जो सियासी शख्सियात के करीब तरीन माविन रहे हैं करप्शन के मामलात में, लेकिन उसमें अगर बख्शा गया है किसी शख्स को तो मंजूर कादिर काका को, और फिर इसके खिलाफ अब तक कोई कार्रवाई और कोई प्रॉपर केसेस, करप्शन के केसेस क्यों रजिस्टर नहीं हो रहे, और फिर उसके ज़रिए से क्यों इंटरपोल वगैरह से रब्ता कायम नहीं किया जा रहा। मंजूर कादिर काका की आसानी से यहाँ से रवानगी, इस हवाले से कोई कार्रवाई ना होना, और अब इस हवाले से सिंध हुकूमत ने और सिंध के वज़ीर आला ने बाकायदा सवाल भी पूछे हैं कि उन लोगों से सवाल पूछे जो बिल्डिंग कंट्रोल के मंजूर काका को रोज़ाना अपने पास बुलाते थे। वो हमेशा नैब के हुक्काम के पास रोज़ाना बैठे होते थे। नैब के हुक्काम से पूछा जाए कि करप्शन के बेताज बादशाह को आखिर किस तरह से VIP ठाट बाट के ज़रिए कराची से रवाना होने दिया गया, इसका सवाल नैब दे, इस सवाल का जवाब नैब दे। नैब बताए कि अगर उसके पास इतनी बड़ी रिपोर्ट्स थी, इतनी तहकीकात थी, तो आखिर अगर हाथ नहीं डाला गया तो सिर्फ मंजूर काका पर ही क्यों नहीं हाथ डाला गया। नैब से सवाल उठ रहा है, दूसरे कानून नाफिज करने वाले इदारों से भी, जो कि मुस्तैदी से करप्शन के खिलाफ तहकीकात कर रहे हैं, लेकिन करप्शन के बेताज बादशाह को छोड़ दिया गया। लेते हैं कमर्शियल ब्रेक और उसके बाद जिक्र करेंगे कराची का मामला है। सिंध हुकूमत से उम्मीद रखना तो बेजा है, लेकिन बहरहाल 2 अहम पुल हैं जो कि बनते नहीं हैं, और अगर बनने शुरू हो जाएं तो ख़त्म नहीं होते। तो इस तरह के 2 बहुत अहम पुल हैं कराची में। हज़ारों लोग रोज़ाना इससे परेशान हैं। इसकी तफसीलात आपको बताएंगे एक छोटे से कमर्शियल ब्रेक के बाद।
सी बात है। कराची में अगर तरक्याती मंसूबे हों तो उनकी बात की जाए। तरक्याती मंसूबे तो क्या, कराची में सड़कों की पैच वर्क भी नज़र नहीं आती, सड़कों की लाइट्स कहीं जलती नज़र नहीं आती। कूड़े कटार का आलम यह है कि शायद ही कोई और शहर हो जहाँ पर इस तरह से कूड़ों के अंबार नज़र आते हों। अगर कहीं पे तरक्याती काम शुरू हो जाए तो फिर वो ख़त्म होता नज़र नहीं आता। यही हाल इस वक्त कराची के दो अहम मंसूबों का है जो कि ख़त्म तो होने थे अब से कई माह कबल, बल्कि 1 साल कबल, लेकिन उसके बावजूद ऐसा लगता है कि वो जू की रफ्तार से आगे बढ़ रहे हैं। 2 मंसूबे शुरू किए थे पीपल्स पार्टी की मौजूदा हुकूमत में। एक कराची के कोरंगी इंडस्ट्रियल एरिया को शहर से जोड़ने वाले पुल की तामीर नौ यानी जाम सादिक ब्रिज को बनाना था। दूसरा मलीर का एक ब्रिज है, नया ब्रिज, उसकी तामीर होनी थी। ये कई महीने पहले ही ख़त्म होना था ये मामला, और वादा ये किया गया था कि ये हर सूरत में जून में ये दोनों काम मुकम्मल हो जाएंगे। मलीर ब्रिज गुज़िश्ता साल शुरू किया गया था और अभी तक उसकी तकमील के कोई आसार दूर दूर तक नहीं है। ना कोई पूछने वाला है, ना कोई जवाब देने वाला। इस पूरी सूरत हाल पर अब आपको दिखाते हैं हमारे नुमाइंदे जुनैब मुइन की खुसूसी रिपोर्ट। हुकूमती गफलत और इदारों की नाअहली की वजह से कराची में अहम नौयत के तरक्याती काम सुस्त रवि का शिकार हैं, जिससे अवाम को शदीद मुश्किलात का सामना है। मलीर के इलाके में पुल की तामीर गुज़िश्ता 2 साल से तात्तुल का शिकार है, जबकि कयूमाबाद के नज़दीक जाम सादिक पुल की मरम्मत भी मुकम्मल नहीं की जा सकी। मलीर 15 पर बनने वाले फ्लाई ओवर को इस साल के आगाज में मुकम्मल करने का दावा किया गया था, लेकिन इसकी तामीर अब तक मुकम्मल नहीं की जा सकी, जिसकी वजह से अवाम मिनटों का सफर घंटों में तय करने पर मजबूर हैं। यहाँ काफ़ी रश लगा हुआ, इन्होंने काफ़ी काम लेट कर दिए। हमारी गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट है, खुदा के लिए आइंदा फ्यूचर में कोई पुल ना बनाए लोग। इलाका मकीनों का कहना है कि फ्लाई ओवर पर 2 दिन काम शुरू होता है और 10 दिन बंद रहता है। 2 साल से यही सूरत हाल है। शाम के टाइम तो ये हालम हो जाता है यहाँ पर कि पैदल गुजरने की भी जगह नहीं होती। शॉप खोलते हैं ना, ऐसा लगता है हम जैसे 6 महीने बाद आके शॉप खोल रहे हैं। दूसरी तरफ कोरंगी इंडस्ट्रियल एरिया को बंदरगाह से मिलाने वाला पुल, जिसे आज जाम सादिक पुल के नाम से जाना जाता है, इसकी मरम्मत का काम भी ताखीर का शिकार है। ज़राए के मुताबिक इस पुल की डिजाइनिंग हैवी ट्रैफिक के लिए नहीं की गई थी। इस पुल की मरम्मत का काम इस साल मार्च से जारी है। मरम्मत में ताखीर से कराची का कोरंगी इंडस्ट्रियल जोन बुरी तरह मुतासिर हो रहा है। पब्लिक के लिए कुछ अगर अच्छा नहीं कर सकते तो कम से कम बुरा भी नहीं करो यार लोगों के लिए। ऐसे काम हो रहा है जैसे कि खैराती काम हो रहा हो, ये गवर्नमेंट निहायत नाअहल है। जाम सादिक पुल की तामीर का तखमीना 12.5 करोड़ रुपए रखा गया था, जो ताखीर की वजह से बढ़कर 24 करोड़ रुपए हो गया है। हमें इन टाइम पेमेंट ना होने की वजह से वो ज़्यादा डिले हुआ है। एक तरफ ये पुल है जो वक्त मुकर्ररा के 4 माह गुजर जाने के बावजूद अभी तक मुकम्मल नहीं किया जा सका, तो दूसरी जानिब वजीर आला हाउस से कुछ फासले पर बनाया जाने वाला अंडरपास वक्त से पहले ही मुकम्मल कर लिया गया है। 4.5 महीने में हुआ है, नहीं तो पहले ऐसे होता कि साल भर पे ये पड़ा रहता। तो ये बहुत रिकॉर्ड टाइम में हुआ है और इस पर 58 करोड़ रुपए खर्च हुए हैं। तो खर्च की तो बात नहीं, सहूलत की बात है। अब इसे इंतजामिया की गफलत कहें या फंड्स की कमी, वजह कुछ भी हो, रोजाना ट्रैफिक जाम के बायस शदीद अजियत बर्दाश्त करना शहरियों का मामूल बन गया है। प्रोग्राम दुनिया कामरान खान के साथ के लिए कैमरामैन नासिर जॉन के साथ जुनैब मोइन, दुनिया न्यूज़, कराची। शायद के दिल में उतर जाए मेरी बात। इसके साथ ही हमारे आज के प्रोग्राम का इख्तिताम होता है। कल आपसे फिर मुलाकात होगी। कल तक के लिए कामरान खान को इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़ नासिर।